عالم۔ ایسے میں تالیہ سامان کے شاپر اٹھائے مسز کامل کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ جو مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے چاول لے رہی ہوں، ان کو اچھا چاول بہت پسند ہے۔ مسز کامل ساتھ میں تبصرہ بھی کیے جا رہی تھیں۔ وہ جیسے ان مہمانوں کے آنے پہ بہت خوش تھیں، مگر ان کا نام کسی وجہ سے نہیں لے پا رہی تھیں، لیکن شاید ان کا دل کسی سے شیئر کرنے کو بہت چاہ رہا تھا۔ تالیہ خاموش رہی، پھر یوں ہی پوچھا، بچے بھی آ رہے ہیں ساتھ؟ نہیں، بس دونوں میاں بیوی آئیں گے۔ ویسے ان کے 2 بچے ہیں۔ پھر رک کے تصحیح کی، 3 تھے، لیکن ان کی بیٹی آریانہ بچپن میں کھو گئی تھی، چیئر لفٹ سے گری تھی، لاش نہیں ملی، مگر سب کو یہی لگا کہ وہ مر گئی ہے، اس لیے قبر وغیرہ بنا دی تھی۔ پھر وہ چپ ہو گئیں، جیسے بہت زیادہ بول گئی ہوں، اور ایک دکان کی طرف چلی گئی۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے آئی۔ مسز کامل نے اعلیٰ درجے کے چاول نکلوائے اور ان کو ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگی۔ تالیہ یوں ہی ان کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، یکدم جیسے ساری آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ مسز کامل کے ہاتھوں میں بھرے چاول دیکھتے ہی دیکھتے جلنے لگے۔ بس لمحے بھر میں وہ سب راکھ ہو گئے اور ان کے دونوں ہاتھ کالک سے رنگے خالی رہ گئے۔ وہ چونکی، سماعت کھل گئی، آوازیں آنے لگیں۔ اس نے مسز کامل کے ہاتھوں کو دیکھا، وہاں کوئی راکھ نہیں تھی۔ وہ چاول اٹھا اٹھا کے چیک کر رہی تھی۔ تالیہ نے ایک گہری سانس بھری۔ میم، اس نے ہولے سے ان کو پکارا، کل آپ کی کسی دوست کا فون آیا تھا، میں بتانا بھول گئی۔ کس کا؟ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ چونک کے اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ نام نہیں بتایا، مگر یہ کہا تھا کہ وہ ذرا مصروف ہیں، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صدقہ دے دیں اور آگ وغیرہ سے احتیاط کریں، کیونکہ انہوں نے آپ کے بارے میں برا خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے اس نے؟ وہ بے چین سی ہو کے پوری اس کی طرف گھوم گئی۔ دونوں اب کاؤنٹر سے ہٹ کر کھڑی تھیں اور سرگوشیوں میں بات کر رہی تھیں۔ یہ کہ آپ نے ہاتھوں میں چاول اٹھا رکھے ہیں اور وہ راکھ میں بدل جاتے ہیں۔ شاید آپ کو چولہے اور ہیٹر وغیرہ سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اوہ، تم نے اچھا کیا مجھے بتا دیا۔ لیکن کون دوست تھی میری؟ نام نہیں بتایا، لیکن کہتے ہیں برے خواب کا بار بار ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ بس صدقہ اور دعا وغیرہ کریں۔ اس نے خوبصورتی سے بات کا رخ پھیرا تو وہ سر ہلا کے رہ گئی، البتہ چہرے پہ بے پناہ پریشانی امڈ آئی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کے ہاتھ جلنے والے ہیں یا آپ کے گھر کو آگ لگنے والی ہے۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ یہ ویژن میں نے دیکھا ہے، نہ ہی یہ کہ میرے خواب ہمیشہ سچ ہو جاتے ہیں۔ اوہ میرے اللہ، یہ تحفہ نہیں ہے، یہ تو ایک قرض ہے۔ ان کے ساتھ سر جھکائے بازار میں چلتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، ساتھ ہی بار بار ان کے ہاتھوں کو بھی دیکھ لیتی تھی۔ گوری کلائی میں انہوں نے خوبصورت سا سونے کا بریسلٹ پہن رکھا تھا، جس پہ ننھے ستارے جھول رہے تھے۔ تالیہ نے یوں ہی اپنی خالی کلائی کو دیکھا اور پھر ایک دم وہ ٹھٹک کے رکی۔ ذہن کے پردے پر ایک منظر لہرایا تھا، لاکر میں رکھی ڈبی، اس میں سجا بریسلٹ۔ وہ وہیں سن سی کھڑی رہ گئی، ایک دم ساری گتھیاں سلجھ گئی تھی، پزل کے بہت سے ٹکڑے اپنے اپنے خانوں میں آ گرے تھے۔ لائبریری کے اندر مقدس باروب سی خاموش ویرانی چھائی تھی۔ اونچے ریکس، کتابوں کی طویل الماریاں جگہ جگہ بچھی، میزوں پہ مطالعے میں منہمک سے دکھائی دیتے لوگ، کمپیوٹرز کے آگے پیچھے کام کرتے اشخاص، غرض معمول کا خاموش سا ماحول تھا۔ ایسے میں دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ اس نے صبح کے ملازموں والے لباس کے برعکس سرخ خوبصورت اور قیمتی فراک پہن رکھا تھا، کوہنی پہ ڈیزائنر بیگ تھا اور سر پہ سفید کورا ہیٹ جس سے نکلتے سیاہ بال کندھے پہ گر رہے تھے۔ دروازے پہ وہ رکی، ہیٹ کو ڈائمنڈ پہنی انگلی سے ترچھا کر کے سیاہ آنکھیں آس پاس دوڑائیں۔ ایک لائبریرین جو قریب سے کتابوں کی ٹرالی دھکیلتا گزر رہا تھا، اسے دیکھ کے رکا اور جھٹ سلام جھاڑا۔ السلام علیکم مس سوشا۔ تالیہ نے شایانِ بے نیازی سے سر کو خم دیا، پھر ادھر ادھر دیکھا تو وہ بولا، مسز لیانا اس طرف ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور اسی طرح اٹھی گردن کے ساتھ آگے چلتی گئی۔ کونے میں ایک آڈیٹوریم تھا، شیشے کی دیواروں نے اسے مکمل بند کر رکھا تھا، گویا شیشے کا کوئی ڈبہ ہو۔ اندر تنگ سی جگہ میں وہ پھنس کر بیٹھی سیاہ موٹی عورت دکھائی دے رہی تھی، اینک لگائے،
बाल जूड़े में बांधे वो किताबों में उलझी हुई थी। आहट पे उसने नजरें उठाई तो देखा तालिया दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हो रही थी। इतने सालों से यहाँ काम कर रही हो दौतन, और एक ढंग का ऑफिस भी नहीं देते ये तुम्हें, वो मुस्कुराहट दबा के कहती। सामने कुर्सी खींच के बैठी, पर्स मेज पे रखा और हेड को मजीद तिरछा किया तो चेहरा और स्याह मुस्कुराती आंखें मजीद वाजिया हुई। लियाना बिन्ते दानिश साबरी के पास इतनी दौलत है कि वो चाहे तो ये पूरी लाइब्रेरी खरीद ले। खुशमगीन निगाहों से उसे घूर के वो बोली तो तालिया ने अबरू ऊंचा उठाया। पूरी? चलो आधी सही। दातन ने ढिठाई से तस्वीर की, फिर नाक से मक्खी उड़ाई। और तुम्हारी ये तनकीदी नज़रें जो मेरे इस कुजी ऑफिस को पिछले 20 मिनट से मलामत करके मेरे ऊपर तरस खा रही हैं ना, मैं उनको खुले दिल से माफ़ कर दूंगी, क्योंकि तुम भूल रही हो कि यही वो डब्बा है जिसमें बैठ के हमने वो तमाम प्लान किए थे जिनके बायस तुम आज इस ऊंचे महल में रह रही हो। लगता है बड़े ज़ोर की लगी है। तालिया ने अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। दातन ने चुभती नज़रें उस पे जमाए, नाक जोर से झुकेड़ी। मैं सुन तुसु की मानने वाली हूँ। वो कहता था कि जब अमीर हो तब गरीब नज़र आओ और जब गरीब हो तब अमीर। उसने ये फिक्रा ताकतवर और कमज़ोर के बारे में कहा था, मगर इसका मतलब यही था जो मैंने बयान किया है। अच्छा, चाय नहीं पिलाओगी? वो बुरसी होकर इधर उधर देखने लगी। दातन ने अफसोस से उसे देख के गहरी सांस ली। तुम्हें मालूम है एक चाय के अंदर मौजूद कॉफिन इंसान को कितने ख़तरनाक असरात से दोचार कर सकती है? बेशक एम्परर शेनोंग ने दावा किया था कि चाय बहुत सी बीमारियों की दवा है, लेकिन वो चूंकि एक बादशाह था इसलिए उस पर कभी भी एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय की ज़्यादती सर दर्द, पैनिक अटैक्स, बेख्वाबी, हार्ट बर्न, मतली, डायरिया और कन्फ्यूजन का बायस हो सकती है। ओह, इसीलिए जब तुम मेरे घर आती हो दातन तो मेरी पत्ती सबसे पहले ख़त्म होती है। मैं एक मुज़ी चीज़ से तुम्हें छुटकारा देने की अपनी तरफ से कोशिश कर सकती हूँ तालिया, लेकिन अगर तुम इस जहरीले मादे को अपनी मोहब्बत में, उसकी एडिक्शन में इतनी मुब्तला हो चुकी हो तो मैं उससे ज़्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। उफ, तुम इतनी लंबी बात क्यों करती हो दातन? मगर मोटी औरत ने मेज़ पे रखे ट्रैवलर मग का ढक्कन खोला और पीछे से थर्मोस उठाकर उसमें गर्मा गर्म चाय उंडेली। तालिया ने शुक्रिया कहने को लब खोले ही थे कि दातर ने थर्मोस वापस रखी, कुर्सी पे पीछे को टेक लगाई और मग से घूंट भर के तसल्ली से उसे देखा। हाँ तो तुम कैसे आई? तालिया ने गहरी सांस ली, एक छती हुई नज़र उस पर डाली और गोया हुई। तुम्हें मालूम है क्यों आई हूँ? ओके। दातन ने मग पर तवज्जो दी और उसे साइड पे रखा और अपना टैबलेट निकाल के स्क्रीन उसको दिखाई। यूं कि टैबलेट दातन के हाथों में ही था। ये है वो सिक्का। वहाँ एक आला क्वालिटी की तस्वीर नज़र आ रही थी। तालिया आगे हुई। नामालूम ज़राए से ये सिक्का चंद बरस पहले मंजरे आम पे आया था। तकरीबन 17 साल पहले। ये सुल्तान ज़फ़र शाह के ज़माने के सिक्कों से मुख्तलिफ है, लेकिन हर म्यूज़ियम और हर व्यापारी ने उससे मुतल्लिक बहुत सी कहानियाँ सुनाई हैं और हम दोनों जानते हैं कि वो सब झूठी हैं। ये सिक्का ज़्यादा देर किसी के पास ठहरता नहीं है, या बेच दिया जाता है, या तोहफे में दे दिया जाता है, या नीलाम हो जाता है। मैं इसका पूरा ट्रायल तो नहीं ढूंढ सकी, लेकिन पिछले 7 सालों में हमारी वो रुकी और मुनासिब लफ्ज़ ढूंढा। 11 बड़ी जॉब्स वारदातों में से 5 में ये सिक्का मौजूद था और बाकी में। उसने बेकरारी से कहते हुए हाथ आगे बढ़ाया ताकि टैब लेकर, मगर दातन ने उसे पीछे कर लिया और खफकी से भवें सुखेड़ी। अगर तुम चंद लम्हे का सुकूत इख्तियार करो और मुझे खुद को मुतासिर करने का मौका दो तो मैं तुम्हें दिखाई दे सकती हूँ कि बेशक बाकी 7 वारदातों में ये सिक्का मौजूद नहीं था, मगर इन 7 जगहों पे जो चीज़ें मौजूद थीं मैंने उनकी लिस्ट बनाई तो कोई और चीज़ थी जो इन 7 जगह पे मौजूद थी, है ना? वो तेज़ी से बोली तो दातन ने लब भींच लिए। मुँह का जायका तक ख़राब हो गया था, मगर जब्त करके कहने लगी, हाँ, मैंने सारा दिन लगाकर क्राइम सीन फ़ोटोज़ और अपने रिसर्च वर्क को किया जो हमने वारदात से पहले किया था।
इकट्ठा किया और तमाम फहरिस्तों को क्रॉस चेक किया तो वो एक आइटम था जो इन सब में मुश्तरक था। बूझो कौन सा? मलाका सल्तनत की एक मलका का सोने का ब्रेसलेट है ना? दातन के कंधे ढीले हुए, मुंह खुल गया। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैं चाय बहुत पीती हूँ, इसलिए मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। और आज मिसेस कामिल के साथ शॉपिंग करते हुए उनका ब्रेसलेट देख के मुझे याद आया कि एक मलका का ब्रेसलेट भी मैंने उन्हीं 7 जॉब्स में से 2-3 में देखा था, मगर नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि मुझे वो नकली लगा था। और हम हमेशा असली और तारीखी आर्ट पे हाथ साफ करते हैं दातन, और वो मुझे तारीखी नहीं लगा था। अगर सब कुछ मालूम हो गया था तो मेरे पास क्यों आई हो? दातन ने बुरा सा मुंह बनाते हुए टैब ज़ोर से बंद करके मेज़ पे रखा। क्योंकि अगर तुम सारा दिन इस काम पे लगी रही हो तो शायद तुम्हें कुछ ऐसा मालूम हुआ हो जो मुझे ना हो सका हो। उस पर दातन खुले दिल से मुस्कुराई। वैसे मैं गरूर नहीं करना चाहती, लेकिन तुम मुतासिर होने के लिए तैयार हो जाओ तालिया बीबी, क्योंकि न वो सिक्का, न कोई और सिक्का, न वो ब्रेसलेट कोई ब्रेसलेट है। ये देखो। दातन ने टैब स्क्रीन उसके सामने की तो वो चौंक के आगे को होके देखने लगी। वहाँ एक तरफ सिक्के की तस्वीर बनी थी और दूसरी तरफ एक जंजीर वाला ब्रेसलेट बना था, जिसके ऊपर सोने की मुस्ततील डली सी थी, जिसके आखिर में 3 दांत बने थे। बज़ाहिर ये एक सिक्का है और वो एक ब्रेसलेट, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ो तो दाता ने मुस्कुराते हुए बटन दबाया तो एक और इमेज जनरेट हुआ जिसमें इन दोनों अशिया के किनारे मिले हुए नज़र आ रहे थे। ये देखो क्या बनता है। चाबी, वो मशहूर सी बोली। ये एक चाबी के 2 टुकड़े हैं जिसके साथ जंजीर लगी है। हाँ, ये एक टूटी हुई चाबी है जिसको हमें ढूंढना है, और तुम्हारी तकदीर बार बार तुम्हें उसकी तरफ ले जाती थी, लेकिन तुम कभी समझी ही नहीं। तालिया की आंखों में चमक सी दर आई थी। सिक्का निकालना तो कोई मसला नहीं। कल तेंगु कामिल के घर कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। डिनर की अफरा तफरी में मैं जेवरात रदल बदल करके सिक्का निकाल लूँगी। सिक्के की कॉपी हम इसलिए तैयार नहीं करेंगे क्योंकि बाद में अगर हमें उसको फैंस करना पड़े तो तेंगु कामिल ये दावा ना कर सके कि उसके पास भी वैसा ही सिक्का है, वरना हमें उसकी अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। तुम ब्रेसलेट को ढूंढो कि ये किसके पास है। वो दबे दबे जोश से बोली तो दातन ने टेक लगाए पुरसोच हनकारा भरा। फिर मग का ढक्कन हटाया तो चाय की खुशबू भाप के साथ ऊपर उठने लगी। उसने मग लबों से लगाया, घूंट भरा, मग नीचे किया, इस दौरान जैसे अल्फाज जोड़े। जितना इन चीज़ों की मलकियत की चैन को मैंने देखा है तालिया, इन दोनों को कभी किसी ने नहीं चुराया। उनको या मालिक बेच देता है या किसी म्यूज़ियम को अतिया कर देता है जहाँ किसी ऑक्शन पे इनको फ़रोख्त कर दिया जाता है, या मुल्क खुद ही किसी दोस्त को तोहफा दे देता है। मगर फिर वो चुप हुई। तालिया बगौर उसका चेहरा देख रही थी जिसके सामने चाय के बेरंग धुएं के मरकोले तैरते दिखाई दे रहे थे। मगर एक अजीब बात मुझे महसूस हुई है, दातन ने कहना शुरू किया। मेरा ख्याल था मेरे साथ रह रह कर तुमने अजायबात पे हैरान होना छोड़ दिया है। हाँ, मेरा जहन हर उस चीज़ को मान सकता है जिसको लोग झूठ करार देते हैं, क्योंकि हमारी हुकूमतें और हमारे दानश्वर हमें अदना समझकर हमसे हक़ाइक़ छुपाते आए हैं। लेकिन ये बात फिर भी अजीब थी, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि हर वो प्राइवेट ओनर जिसके पास ये सिक्का या ये ब्रेसलेट रहा है, उसको कोई बीमारी लाहक हो जाती है, कोई बड़ी मुज़िब बीमारी। हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो दातन। छोड़ो इन बातों को, बस इस पर ब्रेसलेट को ढूंढो ताकि हम जल्द अज जल्द उसे हासिल कर सकें। फिर खला में देखते हुए वो गहरी सांस लेकर बोली, मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैंने इतने साल ज़ाया कर दिए। मैं कल से यही सोच रही हूँ। मेरी किस्मत मुझे इस चाबी तक ले जाना चाहती थी और मैं दूसरी चीज़ों में पड़ी रही। इस चाबी की कीमत इन सब से ज़्यादा होगी यकीनन। मुझे लगता है दातन, उसने पुरउम्मीद नज़रों से उसे देखा। ये वही बड़ी जॉब है जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी। मेरी आखिरी चोरी, आखिरी हेस्ट, वो क्या कहते हैं, स्कोर ऑफ द स्कोर्स। और इससे मैं इतना कमा लूँगी कि फिर दोबारा कोई गलत काम नहीं करना पड़ेगा।
तालिया, कोई चोरी हमारी आखिरी चोरी नहीं हो सकती। हम नहीं बदल सकते, न कभी बदलेंगे। उसने समझाना चाहा मगर वो बज़िद थी। मुझे लगता है मैं बदल जाऊंगी, इसलिए इस चाबी को ढूंढो दातन। एक आखिरी ऊंचा हाथ मार के हम किसी दूसरे मुल्क चले जाएंगे। मैं फैसला कर चुकी हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि हम उसकी खोज न लगाएं। मुझे डर है कि कोई बुरी शय, कोई बला हमारी घात लगाए न बैठी हो। वो गैर आरामदेह नजर आ रही थी। तुम वहम कर रही हो यार, हौसला रखो। वो नाक से मक्खी उड़ाती उठ खड़ी हुई। बैग भी उठा लिया। दातन ने समझ के सर हिला दिया। ओके, मैं उसे ढूंढूंगी, मगर जो उस रोज़ तुमने ख्वाब देखा, तुमने बताया था कि उसमें भी तुमने एक आदमी को कीचड़ में लुथड़े चाबी तुम्हारी तरफ बढ़ाते देखा था। याद करते हुए वो खुद चौंकी। क्या वो यही चाबी थी? चाय के मग का ढक्कन बंद था और उसे भाप हनूज उड़ रही थी। तालिया ठहर गई, खुद भी जैसे वो चौंकी थी। हाँ, वो यही थी। उसने टैबलेट उठा के फिर से इस चाबी को गौर से देखा। उसे कुछ याद आया था। एक नन्ही कलाई पे बंधा ब्रेसलेट, पजल का एक और टुकड़ा एन अपनी जगह पे आकर गिरा था। वैसे वो आदमी कौन था तालिया? दादा ने तजस्सुस से पूछा, मगर वो सुन नहीं रही थी। वो कहीं और गुम थे। मैंने ये ब्रेसलेट देख रखा है पहले। मुझे पता है ये किसका था। फिर उसके चेहरे पे सख्ती आ गई, जैसे बेचैनी और दुख की मिली जुली कैफियत हो। मिसेस मारिया, आपने अच्छा नहीं किया। उसने टैबलेट पटका और तनफन करती बाहर निकल गई। दातन हैरत से उसे जाते देखती रही। इसे क्या हुआ? अगली सुबह जब कोलालमपुर की बुलंद बाला इमारतें धूप में सीना ताने खड़ी थीं और नमी से बोझल फिजा ने माहौल में हबस सा पैदा कर रखा था, शहर के एक मफलूकुल हाल इलाके में फ्लैट बिल्डिंग्स की बालकनियों में रस्सियों से कपड़े सूखते दिखाई दे रहे थे। इतवार के बाइस शायद सारी इमारत की औरतों ने वॉशिंग मशीन लगा रखी थी। ऐसे में तालिया बिनते मुराद एक फ्लैट बिल्डिंग की गंदी मैली सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। वो माले तर्ज का हिजाब पहने हुए थी, स्कर्ट और लंबी कमीज जैसा लिबास और उसके ऊपर कस के लिया गया स्कार्फ, जिस पे मजीद एक दुपट्टा फैला रखा था। आंखों पे नज़र का चश्मा लगा था और वो पहले से मुख्तलिफ नजर आ रही थी। तीसरी मंजिल के एक दरवाजे के सामने वो रुकी और बेल बजाई। आ रही हूँ, औरत की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो तकलीफ में आहिस्ता आहिस्ता चलती दरवाजे तक आ रही हो। फिर दरवाज़ा खुल गया और एक उधेड़ उम्र औरत नजर आई, जिसका चेहरा करेले के खोल की मानद झुर्रियों ज़दा था और सर सफ़ेद सुरमई बाल चोटी में गंदे थे। नज़र के मोटे चश्मे से उसने सामने खड़ी लड़की के चेहरे को देखा तो चेहरा खिल उठा। तालिया, आओ आओ, बड़े अरसे बाद आई तुम। आ जाओ। उन्होंने खुशी से उसे रास्ता दिया। वो सलाम करके सर झुकाए अंदर दाखिल हुई। वो तंग तारीक सा फ्लैट था। सामने एक लाउंज नुमा छोटा सा कमरा था, जिसमें सोफे रखे थे। खातून घुटनों के दर्द के बायस टेढ़ी सीधी चलती आगे आई, सोफों से कपड़े हटाए और बैठने को जगह बनाई। आओ बैठो। आज मशीन लगा रही थी तो सारा घर कपड़ों से भरा पड़ा है। हालांकि एक मेरे कितने कपड़े होते हैं। तुम बैठो, मैं शरबत लाती हूँ। ओके मिसेस मारिया। वो मुस्कुरा के बैठ गई। वो गई तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई और उस पर खफकी नजर आने लगी, जैसे उसने फिर से मस्नूई मुस्कुराहट के पर्दे में छुपा लिया था। कुछ देर बाद वो उसके सामने शरबत की ट्रे रख रही थी। इतना अच्छा लगा तुम्हें यूं देख के। अभी तक स्कूल में पढ़ा रही हो? जी, वो मुस्कुरा के बोली। वो दीनियात और मैथ्स पढ़ाती हूँ। वो नज़रें झुका के शराफत से बोली थी। शोहर, बच्चे सब ठीक हैं? जी, बच्चे स्कूल गए हुए थे तो मैं वक्त निकाल के आ गई। स्केम आर्टिस्ट की मुस्कुराहट वैसी ही सादा थी। कभी उनको साथ भी ले आओ मुझसे मिलवाने। सिर्फ तस्वीर दिखाती हैं तुमने अब तक, उन्होंने शिकवा किया। बस जब आपसे मिलती हूँ तो अपना आप भी बच्चा लगने लगता है। आप यतीम खाने की मुंतजिम थी और 3 साल मेरा वहाँ ख्याल रखा था आपने। आपके साथ बैठ के पुरानी बातें याद करने का दिल करता है मिसेस मारिया। बात मोड़ दी। खुश रहो, जीती रहो। उन्होंने गहरी सांस ली। जो बच्चे छोड़ जाते हैं यतीम खाना, वो कभी वापस नहीं आते, मगर जिस तरह तुम वापस आ जाती हो, पैसे भेजती हो, दिल बहुत खुश होता है। शरबत से भरा गिलास दोनों के दरमियान अनछुआ रखा था। तालिया ने
اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، بس نظریں ان کے بیمار زدہ چہرے پہ جمائے رکھیں۔ مسز ماریہ، آپ کو کبھی علم نہیں ہو سکا کہ مجھے وہاں کون چھوڑ گیا تھا؟ یہ معمہ بھی کبھی حل نہیں کر سکی۔ رات کو چرچ بند ہوتا تھا، صبح جو پہلا بندہ ادھر گیا اس کو تم وہیں ملی تھی، مجھے وہ سب یاد ہے۔ وہ اتوار کا دن تھا، آپ عبادت کے لیے جلدی آ گئی تھیں اور مجھے روک کے کچھ پوچھا تھا آپ نے۔ ہاں، میں پھر تمہیں یتیم خانے لے آئی، وہیں پولیس بھی بلائی، مگر کوئی بھی تمہارے ماں باپ کو نہیں ڈھونڈ سکا۔ تمہارے کپڑے عجیب سے تھے، پھٹے پرانے، میلے کچیلے۔ تمہیں میں نے نئے کپڑے دیے، تمہیں تیار کیا، اور وہ یاد کر کے ذرا جوش سے بولی جا رہی تھی کہ تالیہ ایک دم بولی، مجھے میرے ماں باپ مل گئے ہیں مسز ماریہ۔ مسز ماریہ رکیں، منہ کھل گیا، بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا جس کی اینک کے پیچھے چھپی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیر رہے تھے، اور وہ خوشی سے بتا رہی تھی، ایک ویب سائٹ گمشدہ بچوں کو ان کے ماں باپ سے ملاتی ہے۔ میں نے اپنے بچپن کی تصویر ڈالی تو ایک جوڑے نے مجھ سے رابطہ کیا۔ وہ مالے ہیں مگر امریکہ میں رہتے ہیں۔ میں نے ان کو اپنی DNA رپورٹ بھیجی تو وہ میچ کر گئی۔ اب میں امریکہ جا رہی ہوں۔ واؤ تالیہ، واؤ! وہ خوشگوار سی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دبائے کہنے لگی، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ یہ تو انہونی ہو گئی، مگر اس وقت وہ کیوں نہیں آئے تھے تمہیں کلیم کرنے؟ ان کی مجبوری کی لمبی داستان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اغوا کیا گیا تھا، لیکن وہ ٹھہری۔ آواز رازدانہ سرگوشی میں بدلی اور آگے کو جھکی۔ انہوں نے $20,000 کا انعام دینے کا وعدہ کیا ہے میرے کیئر ٹیکرز کو۔ میری لاہور والی فیملی اتنی اچھی نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتی یہ انعام ان کو ملے، میں چاہتی ہوں یہ یتیم خانے کے لوگوں کو ملے، یعنی آپ کو ملے۔ اسکیم آرٹسٹ نے پہلا پتا پھینکا۔ $20,000! ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ جی مسز ماریہ، وہ بہت امیر لوگ ہیں، میرے بعد ان کی اولاد نہیں ہوئی، وہ خوشی میں کہہ رہے ہیں یہ سب، مگر ایک مسئلہ ہے۔ کیا؟ ان کی سانس اٹک گئی۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں یہ ثابت کر کے دوں کہ آپ واقعی مجھے چرچ میں ملی تھیں۔ ظاہر ہے اتنی بڑی رقم دینے سے پہلے ان کو گارنٹی چاہیے کہ آپ واقعی میری کیئر ٹیکر تھیں یا نہیں۔ میں کیسے ثابت کروں؟ وہ بالکل سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی اور مارے جذبات کے اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ آپ کو کوئی نشانی بتا سکتی ہیں؟ کوئی ایسی بات جو صرف آپ کو ہی معلوم ہو سکتی ہو؟ اصل میں اس نے لہجے کو سرسری بنایا۔